Hello everyone. Today we will talk about one of the disasters. Yes, hearing about which always disturbs us. That is suicide. Someone has ended up one's own life, this precious life. Some of you may be knowing since 2003, September has been observed as Suicide Awareness Month. And today, 10th of September, is World Suicide Prevention Day. So today I'd like to take this opportunity to put my thoughts on this global phenomenon. Practically speaking, suicide prevention is not something which is going to happen over a week or a month. But yes, we need to start talking about suicide now. And we need to keep talking. Whether it's about our own mental health or of someone around us. Because as the most advanced creatures of this planet, we do have some responsibilities towards ourselves, our family and our society. So today I'd like to take this opportunity to talk about the mental health and suicide prevention. If we see the facts, then according to the WHO, every year close to 8 lakh people die due to suicide globally, and at least one person dies due to suicide every 40 seconds. You will be even more surprised to know that India accounted for more than 1/3 suicides of women and almost 1/4 suicides of men worldwide. Yes, these figures are scary. Preventing suicide begins with observing of our own internal experience and behavior, and that of loved ones and people we encounter informally every day. So first of all, we should try to figure out who commits suicide and why does anyone even want to end up his or her own life. Research says broadly there are two scenarios. One is the group of people who were already suffering from some kind of mental illness, and other consists of those people who were facing some life challenges and were not able to cope with it. Studies say around 90% of people who commit suicide have mental disease. So पहले इस ग्रुप की बात करते हैं. इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनके सिम्टम्स को पहचानने की, एंड पहचान भी लिया तो एक्सेप्टेंस की, एंड दूसरी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड स्टिग्मा की. हम अक्सर बोल देते हैं, अरे ये तो डिप्रेस सा ही रहता है, वो तो बड़ा नेगेटिव सा बंदा है, इसको तो फालतू में हर चीज की टेंशन होती रहती है. तो बेटर होगा हम ऐसे रिमार्क्स कैजुअली ना दें, और अगर कोई आसपास परेशान है तो हो सकता है वो एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी और मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा हो, तो आप उसकी बातों को जेन्युइनली सुने एंड उसकी हेल्प करें. डॉक्टर से कंसल्ट करने में, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट का नंबर देने में. हमें इससे एसोसिएटेड स्टिग्मा को भी ख़त्म करना चाहिए. अगर किसी को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हो तो जाएंगे ना डॉक्टर के पास, बस उसी तरह ये भी एक बीमारी है, बस किसी और भी बीमारी की तरह. और इसके लिए मेडिकल साइंस में एक पूरा डिपार्टमेंट डेडिकेट किया गया है. अगर मेंटल इलनेस इतनी इनसिग्निफिकेंट चीज़ होती तो इसके लिए एक अलग ब्रांच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सेकेंडली, अगर आप ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं तो प्लीज़ डोंट स्टॉप द मेडिसिन्स और रिड्यूस द डोज विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर. जिस तरह से डायबिटीज़ में ग्लूकोज लेवल्स के अकॉर्डिंग आपकी इंसुलिन डोज एडजस्ट होती है, उसी तरह से मेंटल डिजीज़ में भी न्यूरोट्रांसमीटर का एक मेजर रोल होता है, एंड आपकी मेडिसिन्स भी इससे रिलेटेड होती हैं. सो अगर आप बिना डॉक्टर से पूछे डायबिटीज़ की दवाई बंद कर देंगे तो आपका शुगर बहुत हाई हो जाएगा और आप सीरियस कंडीशन में लैंड करेंगे हॉस्पिटल में. उसी तरह अगर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खुद ही बंद कर देंगे, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे नहीं ज़रूरत, तो हो सकता है आपकी विड्रॉल सिम्टम्स आने लगें एंड आपकी तबीयत और ख़राब हो सकती है.
सो प्लीज़ मेडिसिन स्टॉप करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पे, जिनकी लाइफ में अभी कोई अनवांटेड सिचुएशन आ गई है, वेदर इट इज़ अ फेलिंग और फेल्ड रिलेशनशिप or any academic failure or unemployment or any family stress or any such situation. तो please stop, breathe and readjust your momentum. ठीक है, मान लेते हैं आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट जिंदगी से तो बड़ी नहीं होगी। अपनी ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है दोस्तों, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो क्या ही होगा। चलिए मान लेते हैं आपको अभी लग रहा है सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, अब कुछ अच्छा नहीं बचा, बट लेट मी टेल यू, लेट दिस मोमेंट पास, इट विल गो एंड यू विल बी ओके। अगर आपके दिमाग में कुछ भी डिस्ट्रक्टिव ख्याल आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको दिमाग से निकाल दें और सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करें। ये प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी हो, एटलीस्ट 1% चांस तो है कि ये आगे की लाइफ अच्छी होगी, बट अगर ये ज़िंदगी ही ना रही तब तो उसके बेटर होने के चांसेस 0 हैं, है ना। हो सकता है आप इस मोमेंट पे काफ़ी टूट गए हैं, या फिर आपकी प्रॉब्लम कुछ महीनों से या कुछ सालों से ही चलती आ रही है, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी ओके। यस, यू विल बी ओके। यहाँ पे मैं एक सिचुएशन का स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी, दैट इज सुसाइड अटेम्प्ट्स बिकॉज ऑफ फेल्ड रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्लीड टू यू फ्रेंड्स, डोंट डू दिस एवर, जस्ट डोंट डू। नो मैटर आप रिलेशनशिप में कितना इन्वॉल्व थे, आपकी रिलेशनशिप कितने सालों की थी, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, या फिर सब कुछ जो आपको सेटल्ड दिख रहा था वो बिखर सा गया है, कुछ भी हो, but this step is not justified at all. I understand having your heart broken is extremely painful. It feels like your world has been turned upside down and you find yourself going through a range of emotions from shock to depression. You wonder whether you will ever overcome the sadness. But trust me, time is the ultimate healer and you will eventually move on. Studies have shown 98.2% people successfully move on and lead a happy life. Look around you. You will find love that is unconditional, whole, and the type which will do not cause any heartache, and that's love from your family. Being sad is okay, but never ever have any destructive thoughts in your mind. You can't even imagine how it is going to affect your family, especially your parents and your friends. ये उनके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा से कम कुछ भी नहीं होगा। हमें एक्चुअल में आइडिया भी नहीं होता हमारे आसपास कितने लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। ये हो सकता है वो हमेशा आपको अपना प्यार दिखाते ना हो, आपसे नाराज भी हो, बट अपने लव्ड वन को खोने का गम उनको जिंदगी भर सताएगा। सो गाइज अंडरस्टैंड, सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन, नेवर। इससे ज़्यादा सेल्फिश एक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। So guys, I will end up this video here. We'll try to make more videos on it. For the time being, let's pledge to make some contribution starting this September. जरूरी नहीं आप एंटी सुसाइड के पोस्टर्स बनाएं, सुसाइड प्रिवेंशन कैंपेन चलाएं, आप बस अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, बस इतना ही काफ़ी है। So, hoping for a better mental well-being of all of us, let the positivity come and take care guys. Bye bye.